Hello, my dear students. Today we are going to see our next lesson, that is Introduction to Microbiology from Science Part 2. Now, before starting this lesson, here we are going to see about the microbiology. Micro means small living organisms in surrounding or in our environment. Now, about that we are going to see. Here if we see, there are many microorganisms around us. From that, some are useful whereas some are harmful. Now here about microorganism, if we see, in that bacteria is there, after that fungi, virus, protozoa, also algae is there. Now in this if we see, from these some are useful and some are harmful. Now before starting this lesson, here two questions they have given in, can you recall? First question is there, which different microbes are useful to us? यूज़फुल माइक्रोब्स कौन से, ऐसा क्वेश्चन उन्होंने यहाँ पे पूछा है. तो उसमें देखा जाए तो फंगाई इज यूज्ड टू मेक एंटीबायोटिक्स लाइक पेनिसिलिन. इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन ऑफ मेनी फूड स्टफ्स एंड आइटम्स लाइक मेडिसिन. आफ्टर दैट कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो डिकम्पोजिशन का काम करते हैं एनवायरनमेंट में, ये हमें मालूम है. सो बाय दिस प्रोसेस दे आर कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन. Also in manufacturing and researches these microbes are used. Now next question is that which different products can be produced with the help of microbes. यानी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स है कि वो हम बना सकते हैं by using the microbes. Now by using microbes we know that dairy products are there, after that bread, alcoholic drinks are coming in that, after that organic acid, enzyme, steroid प्रोडक्शन यानी कि ये मैनमेड हार्मोन होता है, उसको क्या कहते हैं, स्टेरॉइड प्रोडक्शन, यानी कि मैनमेड हार्मोन बनाने का काम. आफ्टर दैट इंसेक्टिसाइड्स एंड फर्टिलाइजर्स, आफ्टर दैट प्रोडक्शन ऑफ विटामिन. These are the different products which are made by using microbes. Now next one, see here. Second question we have seen. Now next one, applied microbiology. Applied microbiology, if we see in that, it is a branch of biology in which study of enzyme related to some prokaryotics. Prokaryotics means ऐसे एनिमल्स कि जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, एंड यूकैरियोटिक माइक्रोब्स. यूकैरियोटिक यानी कि जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है. आफ्टर दैट प्रोटीन्स, अप्लाइड जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एक्सेट्रा. ये सभी चीज़ें जहाँ पे परफॉर्म्ड होती है उसको कहते हैं अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. दैट इज कॉल्ड एज अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी. This study is useful for the society, and various products like food, medicines and which are produced on large scale with the help of microorganism. यानी कि ये जो स्टडी है अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी में, this study is useful for society and various products like food and medicines are produced on large scale with the help of माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके यहाँ पे वेरियस एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन, इस प्रोडक्ट्स का लार्ज स्केल पे हमें क्या होता है, हेल्प होता है. नाउ नेक्स्ट वन, दैट इज इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी. इन दैट इफ यू सी, this study is useful for society and various products like food and medicines are produced on large scale with the help of microorganisms. यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ करके यहाँ पे
वेरियस एंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो होते हैं जैसे कि फूड प्रोडक्ट्स एंड मेडिसिन, इस प्रोडक्ट्स का लार्ज स्केल पे हमें क्या होता है, हेल्प होता है. Now next one, that is industrial microbiology. In that if we see, this science is related to commercial use of microbes in which various economic, social and environment related progress and products are included. Various microbial process useful to this purpose are carried out. Now in this if we see here, in industrial microbiology if we see, ऐसे कई सारे कमर्शियल माइक्रोब्स होते हैं, उसका यूज़ फॉर वेरियस पर्पजेस होता है जैसे कि इकोनॉमिक, आफ्टर दैट सोशल एंड एनवायरनमेंट रिलेटेड प्रोसेसेस होते हैं कि जिसमें इस प्रोसेस का क्या होता है, यूज़ होता है. नाउ नेक्स्ट वन, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी एंड इट्स मेन फीचर्स. इन दैट फर्स्ट वन दे हैव गिवन वेरियस प्रोडक्शंस विद द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन प्रोसेस. अभी ये फर्मेंटेशन प्रोसेस है कि जो ब्रेड बनाते हैं हम, वो ब्रेड जो प्रोसेस है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही हम क्या करते हैं, ब्रेड बनाने का प्रोसेस कैरिड आउट करते हैं. उसके बाद चीज़ है, वाइन है, तो क्या किया जाता है यहाँ पे, जो फूड स्टफ्स होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है और फर्मेंट करके ये चीज़ें वहाँ पे क्या की जाती है, विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स यहाँ पे बनाई जाती है. आफ्टर दैट रॉ मटेरियल लाइक केमिकल्स, एंजाइम्स, न्यूट्रिएंट्स एंड मेडिसिन, दैट प्रोडक्ट्स आर आल्सो produced by using fermentation process. Now in that B1 they have given use of microbes for garbage management and pollution control. Now we know that about microorganisms, that some microorganisms are doing the work of degradation or decomposition. We very well known about some products and some things are having different time period of decomposition. In that plastic is there which is taking far long time for decomposition. So this type of microorganisms are there which are helping our nature and to us for decomposition of a matter, and by this process they are keeping our environment clean and tidy. Also, whatever the pollution is there due to this garbage, they are controlling this type of pollutions. Now in can you recall, they have asked a question. We use the fermentation process while conversion of milk into yogurt. Which microbes are useful for this process? यानी कि मिल्क का कन्वर्जन योगर्ट में करने के लिए कौन से माइक्रोब्स का यूज़ होता है, तो वो पूछा है उन्होंने. तो यहाँ पे देखा जाए तो लैक्टोबैसिलस बाय द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, ये जो फर्मेंटेशन प्रोसेस है, फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या है, यानी उसमें जो लैक्टोज शुगर होता है उसका कन्वर्जन लैक्टिक एसिड में करना होता है, तो उस प्रोसेस को क्या करते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं. अभी इसमें देखो जो लैक्टोबैसिलस, ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया उसमें यूज़ किया जाता है मिल्क का कन्वर्जन योगर्ट में करने के लिए. उसके बाद में यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स दिए, पहला वाला प्रोडक्ट दिया उन्होंने कि डेयरी प्रोडक्ट, ये जो पार्ट है, ये पार्ट उन्होंने क्या किया है, रिड्यूस किया है. सो नो नीड टू डू दिस पार्ट. ऑन द नेक्स्ट पेज वी विल सी yogurt products. Now in yogurt products if we see, ये योगर्ट का प्रोडक्शन है, योगर्ट यानी कि लोनी. अभी इसका प्रोडक्शन जो है वो फर्मेंटेशन प्रोसेस से ही बनाया जाता है. और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस हमने देखी कि केमिकल ब्रेकडाउन होता है सब्सटेंस का बाय अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. नाउ इन दिस, दैट इज lactose sugar is converted into lactic acid. Now in that see, yogurt is a milk product produced with the help of lactobacilli, that is inoculant for maintaining the protein content. Condensed milk powder is mixed with the milk to be fermented for the industrial production of yogurt. यानी कि मिल्क जो होता है, तो मिल्क में
प्रोटीन कंटेंट बढ़ाने के लिए, मेंटेन रखने के लिए, यानी कि बढ़ाने के लिए, फॉर दैट पर्पज दे आर यूजिंग द मिल्क पाउडर इनटू इट. आफ्टर दैट मिल्क दे आर बॉइलिंग. आफ्टर बॉइलिंग इट for the cool down. When it cools to a warm temperature, at that time bacterial strength of Streptococcus thermophilus and Lactobacillus delbrueckii are added to it. ये जो दो बैक्टीरिया है, थर्मोफिलस, लैक्टोबैसिलस डेल्ब्रुकी, ये दो बैक्टीरिया उसमें क्या किए जाते हैं, ये बैक्टीरियल स्ट्रेन उसमें ऐड किए जाते हैं और उसका जो कंटेंट है, प्रोपोर्शन है, दैट इज 1:1 प्रोपोर्शन. उसके बाद लैक्टिक एसिड इज फॉर्म ड्यू टू दिस स्ट्रेप्टोकोकस, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकस से लैक्टिक एसिड बनाया में कन्वर्जन होता है उस मिल्क का, दैट मेक्स द प्रोटीन टू जेल आउट, दैट गिव्स डेंस कंसिस्टेंसी टू द योगर्ट. यानी कि मिल्क में जो प्रोटीन कंटेंट होता है उसको गाढ़ा बनाने का क्या करता है, काम करता है. और ये जो प्रोपोर्शन दिया है वो प्रोपोर्शन है 1:1. इस प्रोपोर्शन में वो क्या किया जाता है, उसमें ऐड किया जाता है. एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू लैक्टोबैसिली दैट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट टू द योगर्ट. यानी कि एक पर्टिकुलर टेस्ट जो होती है वो एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड जो होता है वो उसमें क्या होता है, उस कंपाउंड की वजह से उसको ये टेस्ट आती है. Nowadays, various fruit juice are mixed with the yogurt to impact different flavors. For example, strawberry yogurt, banana yogurt, etc. यानी कि यहाँ पे देखो एसिटाल्डिहाइड लाइक कंपाउंड्स जो होते हैं दैट आर फॉर्म ड्यू टू लैक्टोबैसिली दैट गिव्स, और ये क्या करते हैं, ये उस योगर्ट को डिफरेंट टेस्ट देने का काम करता है. अभी देखा जाए तो अभी नावडे इफ यू सी डिफरेंट फ्लेवर के भी क्या होते हैं योगर्ट हमें यहाँ पे अवेलेबल होते हैं. जैसे कि यहाँ पे दिए स्ट्रॉबेरी योगर्ट एंड बनाना योगर्ट, ये दो एग्जांपल्स यहाँ पे उन्होंने दिए. सेल्फ लाइफ देखी जाए तो योगर्ट की एंड इट्स प्रोबायोटिक प्रॉपर्टीज कैन बी इम्प्रूव्ड बाय पाश्चराइजेशन. यानी कि क्या होता है, जो सेल्फ लाइफ होती है योगर्ट की वो बढ़ाने के लिए और उसकी प्रोबायोटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो इम्प्रूव करने के लिए उसमें पाश्चराइजेशन मीन्स स्टरलाइजेशन ऑल्सो वी कैन सी, दैट मीन्स निर्जंतुकीकरण, उसको क्या कहते हैं, निर्जंतुकीकरण. तो उसमें देखो थर्ड जो दिया है वो प्रोडक्ट है बटर, उसके बारे में हम देखने वाले हैं. अभी ये बटर भी हमने कई बार ये बटर हमने देखा है, खाया है और हमें अच्छी तरह से मालूम है. तो इसके बारे में कुछ देखेंगे. तो उसमें देखो 2 टाइप्स ऑफ बटर लाइक स्वीट क्रीम एंड कल्चर्ड आर प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल. माइक्रोब्स आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कल्चर वैरायटीज. नाउ इसमें देखा जाए द प्रोडक्शन ऑफ फ्रॉम फैट्स ऑफ मिल्क नॉट फर्मेंटेड दैट इज कॉल्ड दी बटर. बटर क्या होता है, इट इज अ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द फैट विच इज ऑब्टेन बाय द मिल्क. यानी कि मिल्क में से जो फैट होते हैं उससे ये बटर बनाया जाता है. तो उसमें 2 टाइप के बटर है, स्वीट क्रीम बटर और कल्चर बटर. अभी ये स्वीट क्रीम बटर जो होता है ये नॉन फर्मेंटेड क्रीम होती है, स्वीट क्रीम, यानी कि बटर का एक ये क्या है, टाइप है. इसमें कल्चर वाला जो बटर होता है उसमें बैक्टीरिया क्या होता है, ऐड किया जाता है. जो बैक्टीरियल स्ट्रेन होती है उसमें क्या की जाती है, ऐड की जाती है. नाउ नेक्स्ट वन दैट इज चीज़ प्रोडक्शन. इस चीज़ प्रोडक्शन में देखा जाए तो क्या दिया है, देखो cheese is produced on a large scale for the abundantly availabilities cow milk all over the world. First, chemical and microbiological test of milk are performed. यानी कि उस मिल्क की क्या की जाती है, टेस्ट चेक की जाती है. टेस्ट चेक करने के बाद उसमें कुछ कलर्स और माइक्रोब्स उसके अंदर क्या होते हैं, मिलाए जाते हैं. अभी इसमें देखा जाए तो ये जो माइक्रोब्स है वो माइक्रोब्स कौन कौन से हम ऐड करते हैं उसमें,
यहाँ पे नाम दिए है उसके लैक्टोबैसिलस लैक्टीज, लैक्टोबैसिलस क्रीमोरीज एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस। ये 3 टाइप के बैक्टीरिया उसमें क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। अभी नेम्स थोड़े क्या है, डिफ़िकल्ट है। आफ्टर प्रैक्टिसिंग यू विल बी एबल टू लर्न इट मोर क्लियरली। आफ्टर दैट इट इम्पार्ट्स, ये जो 3 बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, दे आर इम्पार्टिंग द सोरनेस, और ये जो सोर टेस्ट होती है वो मिल्क को उसी के वजह से आ जाती है। आफ्टर दिस टू इम्पार्ट द डेंस टेक्सचर, और उसके बाद में उसमें से क्या होता है, ये माइक्रोब्स ऐड करने के बाद जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो सेपरेट हो जाता है, और जो वाटर कंटेंट जो होता है वो सेपरेट हो जाता है, और इसमें से जो डेंस टेक्सचर है वो डेंस टेक्सचर का जो मटेरियल होता है वो बाहर निकाला जाता है, और वाटर को उसको क्या कहा है, ब्रे, यानी कि ये वाटर पार्ट उस योगर्ट में से बाहर निकाला जाता है। एन एंजाइम दैट इज रेनेट विच इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ अ कैटल, यानी कि ये रेनेट जो होता है ये काफ का जो स्टमक होता है काफ का, उस काफ के स्टमक में से एलिमेंट्री कैनाल में से निकाला जाता था एंजाइम ये, और वो क्या किया जाता था, चीज़ बनाने के लिए पहले पहले वाले लोग जो थे वो चीज़ बनाने के लिए ये इस्तेमाल करते थे, और उसकी वजह से जो चीज़ बनता था वो चीज़ कैसा था, नॉन वेजिटेरियन रहता था। इसीलिए नाउअडे इफ वी सी वेजिटेरियन चीज़ इज़ ऑल्सो अवेलेबल। अब उस वेजिटेरियन चीज़ में यहाँ पे देखा जाए तो वो किसकी वजह से वेजिटेरियन है, यहाँ पे देखो, हावेवर एंजाइम प्रोटीएज ऑब्टेन फ्रॉम फंगाई इज यूज्ड एट प्रेजेंट टू प्रोड्यूस वेजिटेरियन चीज़, यानी कि पहले के लोग क्या करते थे, चीज़ बनाने के लिए जो एलिमेंट्री कैनाल है काल्व का, उस एलिमेंट्री कैनाल से वो एंजाइम निकालते थे और वो उसमें मिक्स करते थे, तो उससे जो चीज़ बनता था वो नॉन वेजिटेरियन होता था। पर अभी अभी हम क्या करते थे, यहाँ पे जो प्रोटीएज है, ये प्रोटीएज फंगाई से ऑब्टेन किया जाता है, और ये उसमें यूज़ किया जाता है चीज़ बनाने के लिए, और उससे जो चीज़ बनता है वो कैसा होता है, वेजिटेरियन चीज़ होता है। द व्रे इज सेपरेटेड फ्रॉम द यूगर्ड विच हैज़ सम अदर यूज़, और उसमें से क्या किया जाता है, पानी सेपरेट किया जाता है, और उस पानी का भी क्या किया जाता है, बाद में यूज़ किया जाता है। देन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चीज़ इज स्टार्टेड थ्रू स्टेप्स, और उसकी जो स्टेप है चीज़ बनाने की, वो उसमें देखो कौन कौन से प्रोसेसेस है, लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, उसके बाद उसको वॉश किया जाता है, एंड दैट मीन्स वॉशिंग, आफ्टर दैट रबिंग, आफ्टर दैट सॉल्टिंग एंड मिक्सिंग्स ऑफ इसेंशियल माइक्रोब्स, पिगमेंट्स एंड फ्लेवर्स। ये सब प्रोसेस से क्या बनता है, चीज़ बनता है। फाइनली हमें क्या मिलता है, चीज़ मिलता है। Then cheese is pressed and cut into the pieces and stored for ripening, यानी कि उसको क्या किया जाता है, बाद में प्रेस किया जाता है, एक पर्टिकुलर शेप दिया जाता है, शेप देने के बाद वो क्या किया जाता है, दे आर कट इनटू द पीसेस एंड स्टोर्ड फॉर द राइपनिंग, यानी कि पैकिंग करने के लिए उसको बाद में रखा जाता है। तो ये था चीज़ का प्रोडक्शन। तो उसमें देखा हमने कि चीज़ जो होता है ये काऊ का जो मिल्क होता है उस काऊ के मिल्क से बनाया जाता है। उसमें उससे पहले क्या किया जाता है, उसका केमिकल और माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट होने के बाद उसमें कलर एंड माइक्रोब्स क्या किए जाते हैं, ऐड किए जाते हैं। जो माइक्रोब्स देखे जाए तो कौन कौन से माइक्रोब्स उसमें यूज़ होते हैं, लैक्टोबैसिलस लैक्टेज, लैक्टोबैसिलस क्रीमिरोस एंड स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफ्यूरस। ये जो 3 बैक्टीरिया है वो 3 बैक्टीरिया उसमें मिक्स किए जाते हैं। उस बैक्टीरिया की वजह से उस मिल्क को क्या होता है, सोर टेस्ट जो होती है वो सोर टेस्ट मिलती है। उस प्रोसेस में क्या होता है, पानी का कंटेंट और प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा सेपरेट हो जाता है। उसमें जो व्रे, जो वाटर कंटेंट है उसको व्रे कहा जाता है, वो वाटर कंटेंट रिमूव किया जाता है। बाद में क्या किया जाता है, जो एलिमेंट्री कैनाल है
वो एलिमेंट्री यानी कि ये एंजाइम होता है एनिमल के एलिमेंट्री कैनाल में, जहाँ से हमें कैटल की एलिमेंट्री कैनाल से ऑब्टेंड होता है, वो पहले चीज़ बनाने के लिए उसमें ऐड किया जाता था। पर और उससे जो चीज़ बनता था वो कैसा था, नॉन वेजिटेरियन चीज़ था। और अब भी वेजिटेरियन चीज़ बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसमें प्रोटीएज, ये जो फंगाई से ऑब्टेंड हुआ कंटेंट है वो उसमें मिक्स किया जाता है, और उससे जो चीज़ बनाया जाता है वो होता है वेजिटेरियन चीज़। अभी ये इस टाइप का वेजिटेरियन चीज़ अभी फ़िलहाल यहाँ पे बनाया जाता है इंडस्ट्री में, फैक्ट्रीज में। द व्रे सेपरेटेड फ्रॉम द योगर्ट, यानी कि जो व्रे था यानी कि पानी का जो कंटेंट था वो सेपरेट किया हुआ, उसका भी बाद में यूज़ किया जाता है। और जो चीज़ का जो कंटेंट है उस प्रोसेस में, तो ये चीज़ क्या किया जाता है, जो प्रोडक्शन है चीज़ का वो फाइनली स्टार्ट होता है। तो उसमें भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, लाइक कटिंग द सॉलिड योगर्ट इनटू पीसेस, उसके बाद उसको धोया जाता है, वॉशिंग, आफ्टर दैट रबिंग, सॉल्टिंग, आफ्टर दैट मिक्सिंग ऑफ इसेंशियल्स, माइक्रोब्स, पिगमेंट्स एंड फ्लेवर उसमें क्या किया जाता है, ऐड किया जाता है। उसके बाद प्रेस किया जाता है, प्रेस करने के बाद कट करके रैपनिंग के लिए रखा जाता है। तो ये सारा प्रोसेस इसका है, चीज़ बनाने का प्रोसेस है। Now next one they have given which different types of cheese are used in western food like pizza, burger, sandwich etc. तो इसमें देखा जाए तो जो पिज़्ज़ा है, ये पिज़्ज़ा, बर्गर और सैंडविच ये जो है, तो पिज़्ज़ा ये मोज़रेला टाइप का चीज़ होता है, उससे बनाया जाता है। और ये बर्गर एंड सैंडविचेस जो है उसमें चिडार टाइप का जो चीज़ होता है वो चिडार चीज़ उसमें यूज़ किया जाता है। देखो वेस्टर्न फूड्स में पिज़्ज़ा में कौन सा चीज़ इस्तेमाल करते हैं, तो मोज़रेला नाम का चीज़ है वो इस्तेमाल किया जाता था। और यहाँ पे जो सैंडविच होता है, बर्गर होते हैं, उसमें चिडार टाइप का चीज़ यूज़ किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन सी, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन दोज टाइप ऑफ चीज़, उस चीज़ में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो मोज़रेला टाइप का चीज़ है, इट इज़ सेमी सॉफ्ट इन टेक्सचर, यानी कि वो कैसा होता है, थोड़ा सॉफ्ट होता है, सेमी सॉफ्ट होता है, ज़्यादा हार्ड नहीं होता। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज़ डिफरेंट, बोथ यूज़ गेट फ्रॉम दी मिल्क, यानी कि ये दोनों भी मिल्क से ऑब्टेन होते हैं। पर उसमें ये मोज़रेला चीज़ है, ये कैसा होता है, सेमी सॉफ्ट होता है, और वो थोड़ा सा कैसा होता है, चिड़ा टाइप का जो सिर्फ चीज़ होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। नाउ नेक्स्ट वन दैट इज़ डू यू नो, इन दैट डू यू नो इफ यू सी, ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स strict cleanliness and sterilization is essential, as bacteria can be attacked by virus. Hence, virus resistant varieties of bacteria are developed. Recent use of mutant varieties of bacteria has been increased. Artificially, some strains are developed that will help to avoid unnecessary steps materials. Freshly prepared cheese is always soft, यानी कि जो फ्रेश चीज़ है वो पहचानने का एक तरीका यहाँ पे उन्होंने बताया कि वो कैसा होता है, सॉफ्ट होता है। उसका एग्जांपल्स है कॉटेज चीज़, क्रीम चीज़, मोज़रेला चीज़। On storing for 3 to 12 months, semi-hard cheddar cheese is formed, whereas after ripening for 12 to 18 months, very hard cheese that is called as परमिशन चीज़ इज़ फॉर्म्ड। यानी कि यहाँ पे देखो चीज़ का भी देखो, जो 30 से लेके 12 महीने तक का जो चीज़ होता है वो सेमी हार्ड टाइप का चीज़ होता है, और उसको चिडार चीज़ कहते हैं। उसी चीज़ को 12 से 18 महीने तक रखा तो उससे एक परमिशन चीज़ बनता है, यानी कि वो हार्ड चीज़ जो है उस टाइप का चीज़ हमें क्या होता है, ऑब्टेंड होता है कुछ दिन रखने के बाद। नाउ नेक्स्ट पॉइंट दैट इज प्रोबायोटिक्स दैट वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।